রাহুল গান্ধী অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে লঞ্চ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, দাবি অমিত শাহের। হায়দ্রাবাদে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন 20টিরও বেশি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাহুল গান্ধী নিজেকে লঞ্চ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবার নিজেকে লঞ্চ করার 21তম প্রচেষ্টা তার। সংবাদ মাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারবার মোদির সঙ্গে রাহুল গান্ধীর তুলনা টেনে আনেন। পাশাপাশি চতুর্থ দফা নির্বাচনের আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী শোনালো অমিত শাহকে। দক্ষিণ ভারতের ফলাফল নিয়েও বেশ আশাবাদী তিনি। জানালেন কর্ণাটক, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং কেরলে সবথেকে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপিকেই দেখা যাবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি অমিত শাহ দিন জানিয়েছেন মোদি 75 বছর বয়স হলেও তার তৃতীয় মেয়াদ পূর্ণ করবেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যে অমিত শাহ বলেন, আমি অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ইন্ডি জোটকে বলতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী মোদির 75 বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় আপনাদের খুশি হবার দরকার নেই। বিজেপির সংবিধানে এটা লেখা নেই যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং মেয়াদ পূর্ণ করবেন, বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ বলছেন যে রাহুল গান্ধী অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে লঞ্চ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। হায়দ্রাবাদে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন 20টিরও বেশি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাহুল গান্ধী নিজেকে লঞ্চ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবার নিজেকে লঞ্চ করার 21তম প্রচেষ্টা করছেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারবার মোদির সঙ্গে রাহুল গান্ধীর তুলনা টেনে আনছেন। পাশাপাশি চতুর্থ দফা নির্বাচনের আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী শোনালো অমিত শাহকে। দক্ষিণ ভারতের ফলাফল নিয়েও বেশ আশাবাদী তিনি। জানালেন কর্ণাটক, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং কেরলের সবথেকে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপিকেই দেখা যাবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি এদিন অমিত শাহ বলেন মোট 75 বছর বয়স হলেও তার তৃতীয় মেয়াদ পূর্ণ করবেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় অমিত শাহ বলেন, আমি অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ইন্ডি জোটকে বলতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী মোদির 75 বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় আপনাদের খুশি হবার কারণ নেই। বিজেপির সংবিধানে এটা লেখা নেই যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং মেয়াদ পূর্ণ করবেন, বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই প্রথম 3 দফার ভোট হয়ে গিয়েছে, সামনে সোমবারই রয়েছে চতুর্থ দফার ভোট এবং তার মধ্যেই কিন্তু চলছে প্রচারের ঝড়। আসুন শোনাই কি বলছেন অমিত শাহ। चौथे चरण की प्रचार की समारोह की संध्या पर यह भी बताना चाहता हूं सभी मीडिया के मित्रों को कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगा। इसका मतलब है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा किसी एक दल को सीट मिलेगा तो वो दल होगा भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में हम लगभग 10 सीटों से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। 13 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, मगर 10 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। पूरे देश के सामने अब तक जो प्रचार चला है वो प्रचार में कमोबेश मुद्दे सेट हो चुके। एक और यूपीए है, इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खड़ा है। एक और 12 लाख करोड़ के गपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस और उनके साथी दल है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन पर 23 साल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। एक और सत्ता का सुख भोगने वाले हैं, जैसे थोड़ी ही गर्मी बढ़ते ही कुछ नेता देश के बाहर छुट्टी पर नियमित रूप से चले जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं,
आप भी समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से दीपावली के दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। एक और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल का एजेंडा है। ये 10 साल में मोदी जी ने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के विकास के लिए 70 साल के काम को एक और रखे, इतना काम इस 10 साल के अंदर हुआ है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, आंतरिक सलामती मजबूत हुई है, टेररिज्म और नक्सलिज्म पर पूरा शिकंजा कसा गया है, देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। हमारी बैंकों का जो खस्ता हाल हमें मनमोहन सिंह देकर गए थे, उसको हमने आगे बढ़ाया है। तो एक और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी का है। तो दूसरी बार 20-20 बार लॉन्च करने के बावजूद भी राहुल यान लॉन्च नहीं कर पा रहा है, 21वीं बार लॉन्च करने का भी प्रयास हो रहा। और एक और सबसे गरीब घरों में से चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी है, जो गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की और ट्राइबल्स की संवेदना भी जानते हैं और उनकी जरूरतों को भी जानते हैं। तो दूसरी ओर चांदी के समझ के साथ पैदा हुए नेता है जो परिवारवाद की राजनीति के आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जहां तक सवाल है देश की जनता का, देश की जनता तय कर कर बैठी है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और हम सबको पूरा विश्वास है कि 400 के ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखते থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।